हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? कैसे हो सब तुम लोग? जैसा कि तुम लोग देख रहे हो लॉकडाउन 4 स्टार्ट है। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा छूट मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारे रांची अब रेड जोन से निकलने वाला है। खुशखबरी की बात यह है कि मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ अब। तो अब तुम लोग को नए एनर्जी के साथ आज जो है न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक irrational integral. You know, irrational integral plays a very important role in the future of integral calculus, and it is one of the special type of algebraical integral. A special type of algebraical integral, that is, it has a special form. You know, it has a special form, and special form there are four forms. There are four forms, and there are special substitution. You know, you have to remember that substitution. We have to remember that substitution, and now we see the one by one. The general form is dx by L under root m, or we can say fx dx. The presence of fx in the numerator L root m doesn't affect the substitution. The presence of function in the numerator does not affect the substitution for that type of integral. This form of integral is called irrational integral. That is the occurrence of root. Now we see one by one. The first one is L and M both are linear. Both are linear. Both are linear means it is of the type dx by ax plus b under root cx plus t. You see, this much is L and under root part is M. Both are linear. In this case, we have to take root m equal to t. Whatever be the substitution, you take z u also. Root m equal to t, that is here under root cx plus t equal to t. अभी तक जो आपने देखा इसको हम लोग को t पुट करना है और सारे को फॉर्म में बदल लेना है। किस फॉर्म में? dt के फॉर्म में सारे को बदल लेना है। तो क्या क्या आता है इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और एक साथ हम लोग दो केस देखते हैं। नंबर 2 केस, L is quadratic and M is linear. It is in the form of dx by the quadratic portion ax square plus b. Look at this, it is a quadratic form, and M is linear, that is cx plus d. In both these cases, we take root m equal to t. That is under root cx plus d equal to t. And we have to convert it in another variable dt. Understand? Okay. Now we see one by one. The first one example, dx by x minus 1 under root x plus 1. तुम्हें देखनी है कि इसे जब मैं बनाऊंगा तो तुम्हें देखनी है कि क्या स्पेशल चीज कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, इसी पर आप लोगों को विशेष फोकस करना है। जैसे इट इज बोथ लीनियर, दैट्स व्हाई वी टेक अंडर रूट x plus 1 equal to t, that is x plus 1 equal to t square, that is dx equal to 2t dt. ये फॉर्म आ रहा है और इस फॉर्म में जितने भी पोर्शन आएंगे 2t dt, ये t हमेशा, ये t always to be cancelled out, and this x is transformed into t, that is t square minus 1. From here we take x equal to t square minus 1. Okay.
ये t हमेशा कैंसल्ड आउट होगा, ऑलवेज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर लीनियर तो रहेगा ही, तो यहाँ पर तो हमेशा dx का ऑकरेंस होगा, कोई चीज नहीं आ सकता है चूंकि ये लीनियर पार्ट है। और यहाँ पर t स्क्वायर है तो 2t dt आएगा, तो t का ऑकरेंस ऑलवेज होगा, और t का ऑलवेज ऑकरेंस होगा मतलब ये t से t हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा। कहने का मतलब 2 dt बाई टी स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 2 dt बाई टी स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, that is the special integral form. And special integral form by using special integral formula 1 by 2a 2√2, that is log t minus √2 divided by t plus √2 plus c। अगर तुम्हें जरूरत है t का वैल्यू को पुट करने का तब आप पुट करेंगे। इन द हायर क्लासेस वी टेक वेयर t equal to x plus 1 under root x plus 1, that is here. In the lower classes, that is 11 and 12, we have to put those value of t, हमें इस t के वैल्यू को पुट करनी है 11 12 में। और जैसे हायर क्लासेस में हम लोग जाते हैं हमें where t equal to this मच लिखनी है। दिस वाज इन द फर्स्ट एग्जांपल। तो हमने इसमें यही सिखाया तुम्हें कि अगर इस तरह का l और m अगर दोनों लीनियर आता है तो एक पार्ट ऑलवेज ये t और t कैंसिल होगा और ये हमेशा स्पेशल फॉर्म में जरूर आएगा। अगर स्पेशल फॉर्म ना भी आए तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, और क्वाड्रेटिक का फॉर्म हम लोग सॉल्व करने जानते हैं। क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लाके उसके बाद यूजिंग रिजल्ट, यहाँ पर जो हमने रिजल्ट को यूज किया है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। यहाँ पर यही चीज सीखना था कि ये t और ये t हमेशा कैंसिल होगा और ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे और इसका स्पेशल इंटीग्रल को डायरेक्ट यूज करेंगे। दैट इज द टाइप 1। एंड वन टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑन इरेशनल इंटीग्रल, नोट इट डाउन। नोट कर लिया जाए इसे। चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लोग उठाते हैं और एग्जांपल के थ्रू से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नोट कर लिया सब कोई? डन। मूव ऑन अनदर वन। एक पर हम लोग 2 सवाल बनाएंगे और होम टास्क बाकी बात रहेगा, मिटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पूरा। क्या जी समझ में आया पूरा? देखो बढ़िया से। ओके डन। मतलब है कि पहला सब्स्टिट्यूशन उम्मीद करते हैं तुम्हें याद हो गया होगा कि m अगर लीनियर हो, ये m अगर लीनियर हो, चाहे l क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो। फिर एक बार देखो, अगर ये m लीनियर हो चाहे ये l क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, तुम्हें रूट m बराबर ही पुट करना है। एंड यू शुड रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशन, दैट इज स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। ओके डन। नंबर 2 एग्जांपल, dx by 2x plus 1 under root 4x plus 3. Look at this example. You see both are linear. Both are linear. You have to examine L and M very carefully. It is a linear factor. That's why we take root 4x plus 3 equal to t. That is 4x plus 3 equal to t square. 4 dx equal to 2t dt. ओके, 2 कैंसिल आउट करते हैं। dx इक्वल टू 1 by 2 t dt। डन। dx इक्वल टू 1 by 2 t dt। ओके, एंड दिस मच इक्वल टू t। You see t always cancelled out, and from which we can take the value of x
we can take the value of x, that is x equal to t square minus 3 by 4, put it here, bracket 2x का वैल्यू कितना है t square minus 3 by 4, ओके, प्लस 1, डन। देख रहे हो x का वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, सारे को t का फॉर्म में, ये t ऑलवेज कैंसिल होगा, 1/2 dt बाई 2 से 4 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 2 बच जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2/2, डन। t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा dt बाई t स्क्वायर माइनस 1। इट इज a स्पेशल फॉर्म 1/2 into 1 log t minus 1 by t plus 1, where t equal to 4x plus 3। हमने पहले बताया 11-12 के विद्यार्थी जो रहेंगे t का वैल्यू को पुट करेंगे और बाकी बात हायर क्लासेस के लोग सीधे t इक्वल टू वेयर t लिख के निकल जाएंगे, बिकॉज हम लोग पुट तभी करते हैं जब हमें इसका जरूरत महसूस होता है आगे चल के, जब हमें इसका यूज करना होता है आगे चल के, इसलिए हम लोग t का वैल्यू को एज यूजुअल छोड़ देते हैं, वेयर t इक्वल टू लिख के। आप जान जाए t का वैल्यू ये है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पर एक होम टास्क हो जाए, होमवर्क में आएगा, होमवर्क इस वैरायटी पर होमवर्क में आ जाएगा dx बाई x प्लस 1 अंडर रूट 2x प्लस 3, ये होमवर्क में है। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएं इस होमवर्क को, और इस तरह से हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे, इसका फॉर्म 2, डन। आ गया वो समझ में? चले आगे, आइए इसे हम लोग मिटा दिया जाए, देख लीजिए अच्छी तरह से आप लोग, नोट डाउन। जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए आप लोग अच्छी तरह से, ओके। नाउ द सेकंड फॉर्म इज, सेकंड फॉर्म में हमने देखा, सेकंड फॉर्म में हमने देखा कि L अगर क्वाड्रेटिक हो, द फॉर्म 2 टाइप 2, L is quadratic and M is linear. In this case also we take root M equal to t. Root M equal to t. Now let it take one more example. Dx by x square plus 1 into under root x minus 1. Look at this. In this case also we take root x minus 1 equal to t, because it has the linear factor. Let root x minus 1 equal to t, x minus 1 equal to t square, dx equal to 2t dt. You see, you have to see the generalized form. You have to see the generalized form which occurs after substitution. That is dx equal to 2t dt. In this case also x minus 1 equal to t. In this case also this t and this t is cancelled out. So in both the cases, if occurrence of linear factor in the under root factor, this substitution t always cancelled out. Now x equal to t square plus 1, x equal to t square plus 1, put it here, t square plus 1 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर है तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. ओके, नाउ 2 टेकन आउट, dt बाई t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 राइट. 2 dt बाई t टू द पावर 4 प्लस 2t square plus 2. Look at this. How you can solve t to the power 4 plus 2t square plus 1? How you can solve? It is the longest process to, we have to develop t square. We have to develop t square in upper portion. अपर पोर्शन में टी स्क्वायर को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस 1 लिखते हैं, दैट इज 2. 2 से या इस 2 को ही हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस 1. टी स्क्वायर जोड़ देते हैं और टी स्क्वायर घटा देते हैं. ऑकरेंस ऑफ टी स्क्वायर, इस 2 को हमने 2 पार्ट में लिख दिया. बाई टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2. Now we have 2 parts, dt 1 plus t square by t to the power 4 plus 2t square plus 2 plus 1 minus t square by t to the power 4 plus 2t square plus 2. You can get I1 and I2. You can solve it easily. Okay, we see here it is another type. Here we study about how to make the substitution. So this much integral and this much integral is solved by a special method. We proceed it later on. Okay, done. What किया जाए? इस पर एग्जाम्पल बड़ा कम मिलता है, दिख रहा है, एग्जाम्पल कम मिलता है इसमें. ओके, इस पर जैसे जैसे एग्जाम्पल और आएगा तो मैं बताऊंगा. एग्जाम्पल इसमें कम है, ठीक है. एडिशन में इंटीग्रल है तुम्हारे पास, एडिशन में नहीं है, यहाँ देखो तो इंटीग्रल है एडिशन में. इस इंटीग्रल को मैं लेटर ऑन बताऊंगा, तब इसका प्रोसीजर पाएंगे. हमें यहाँ पर यही सीखनी है कि कैसे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं. मोटा किताब देखो ना, क्लास 11 12 का देखो तो छोड़ो, बाद में देखना, तत्काल टाइप 3. You know type 3 in which dx by L root m. Here L is linear and m is quadratic. M is quadratic. In this case we have to take L equal to 1 by t. In this case we have to take L equal to 1 by t. That is dx by the original form. L is linear, that is ax plus b. M is quadratic, that is cx square plus d. In this case we take, that is quadratic and that is linear. In this case ax plus b equal to 1 by t, that is L. Okay, इसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे. तो इस केस में देखो कि L इज लीनियर और M इज क्वाड्रेटिक अगर है तो हमें पुट करनी है L इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज ax प्लस b इक्वल टू 1 बाई टी. आते हैं इसके हम लोग एक छोटा सा सवाल बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनता है. dx by 1 plus x
इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आइए इसको देखें हम लोग। यहाँ पर देख रहे हो कि L जो है ना वो लीनियर है और M क्या है, क्वाड्रेटिक है। इस केस में हम लोग पुट करते हैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/t, L बराबर 1/t, दैट इज dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। वी हैव टू सी द फॉर्म बिकम्स dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। डन। dx का वैल्यू हमने पुट कर दिया माइनस 1/t स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स 1/t अंडर रूट, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकाल लेते हैं 1/t माइनस 1, और यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 प्लस ट्वाइस 1/t माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/t माइनस 1 का स्क्वायर। डन। दिख रहा? ये t देखना है ध्यान से कि इस पूरे फॉर्मेट में ये t ऑलरेडी कैंसिल होगा। यहाँ पर एक t बच जाएगा जो कि आएगा माइनस dt बाई t अंडर रूट 1 प्लस 2/t माइनस 2, दिख रहा है, माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t। लुक दिस, ओके, 1 प्लस 2/t, ओके, माइनस 2 माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t। ओके, नोट डाउन, नोट करें आप लोग। जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए अच्छी तरह से। ओके, डन। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेके, और ओके, डन है। चलो, यहां से हम देखेंगे कि यहां पर जो एलसीएम लेंगे टी का, ये भी टी कैंसिल होगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है ना 2 स्टेप में खत्म होगा। एक 1/2 पुट करेंगे तब, और एक इसको एलसीएम लेंगे तब। ये टी हमेशा खत्म हो जाएगा, और ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ऑलवेज इस तरह का केस में यही होने वाला है। ओके, माइनस dt बाई t, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4/t माइनस 2 माइनस 1/t स्क्वायर। जरा एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम जरा ले लिया जाए इसको, t अंडर रूट 4 माइनस 2t माइनस 1, 4 माइनस 2t, कितना आएगा, 4, यहाँ पर आ जाएगा 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आएगा। बाई यहाँ से t स्क्वायर हट के t आ जाएगा। ओके, 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1, ये टी ऑलवेज कैंसिल आउट होगा, और ये ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऑब्वियसली ये बन गया माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस पहले 2 को कॉमन निकालते हैं तो 1/√2 आएगा, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाले हैं तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1/2 आएगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस टी स्क्वायर, 2 कॉमन निकालेंगे 2t बचेगा माइनस 1/2। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करना है अच्छी तरह से। ओके, dt बाई अंडर रूट माइनस को अंडर रूट कॉमन निकालेंगे, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1/2। ओके, माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे, रूट के अंदर। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या, -1/√2 dt बाई अंडर रूट माइनस, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, t² - 2t + 1 जोड़ देते हैं तो होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, +1/2 -1 कर देते हैं। ओके, 1 और 1 जोड़ दिया होल स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए, ये 1/√2, ये dt, ये बाई, ये अंडर रूट t-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं हम लोग, और हाफ में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब ये जो है ना, अब इस माइनस को हम लोग अंदर ले जाते हैं और इसको पलट देते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 - t-1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से आता है, देखो, dt बाई अंडर रूट 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस t-1 का होल स्क्वायर। ऐसा लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या होता है फॉर्म इसका, dx बाई अंडर रूट a² - x² बराबर साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स t-1/1/√2। यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिख देनी है वेयर t = कितना था, यहाँ पर हम लोग लिए थे x + 1 बराबर 1/t लिए थे ना, ये सवाल था ना, x + 1 बराबर 1/t। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 1/x + 1, वेयर t बराबर 1/x + 1। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो t का वैल्यू जरूर पुट करें, और हायर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कहीं भी, तो आप t को वेयर t करके लिख सकते हैं। नोट इट डाउन। तो यहाँ पर तुम्हें क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म को सॉल्व कराना चाहिए, ये फार्मूला बशर्ते सही रहना चाहिए। हमेशा ऑलवेज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऑकर करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाने के बाद सारा रिजल्ट मेरे पास है। इस फॉर्म के लिए जो जो रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा हम बताते हैं, अभी नोट किया जाए। समझ आया? क्या इसमें खास देखा तुमने? खास यही चीज देखा कि कैसे ये टी 2 स्टेप में कटेगा और हमेशा अंदर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को सॉल्व करना हम जानते हैं। ओके, डन। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ। तो हम लोग इस पर जो जो रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा जरा शुरू से हम लोग देख लें, एक बार अच्छा से रिमेंबर करवा देता हूं मैं, क्या क्या रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा। देखिए आप लोग, स्पेशल फॉर्म है ये, स्पेशल इंटीग्रल, क्या क्या जरूरत पड़ेगा, dx बाई अंडर रूट x² + a², dx बाई अंडर रूट x² - a², dx बाई अंडर रूट a² - x²। ये तीनों रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा क्योंकि अंदर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक रिजल्ट आप याद रखें, इसका रिजल्ट तो तुम्हें याद ही है, साइन इनवर्स x/a। तो चलो ये तो हो गया काम खत्म, ये तो रिजल्ट याद ही है। रहा इन दोनों का बात, तो अगर हम लोग इस रिजल्ट को लिख लेते हैं तो इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या अंतर है, a² के स्थान पर -a²। मतलब ये रिजल्ट अगर मेरे पास है तो ये रिजल्ट भी मेरे पास रहेगा। इसका रिजल्ट होता है log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², और तब इसका रिजल्ट हो जाएगा x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। मतलब इसे याद रखें, ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, ये तो आपको याद ही है। मतलब इस पूरे फॉर्मेट में सिर्फ एक ही रिजल्ट तो तुम्हें याद करना है, ये तैयार, मतलब ये पूरा फॉर्मूला तैयार। होमवर्क में आप लोग ले लें, एक होमवर्क हमने दिया था उसमें, एक होमवर्क इसमें भी ले लें। dx बाई 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस 3x²। होमवर्क नंबर 2, नंबर 3, dx बाई x अंडर रूट x² प्लस
6x plus 109, x under root x square plus 6x plus 109. These are home tasks. The last form occurs in such a way that, okay, note down. ओके, होमवर्क दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह देखो। ओके, लास्ट में सिर्फ फॉर्म नहीं देता हूं, इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे अगले क्लास में। ओके, डन। लास्ट फॉर्म dx by L under root m if L and m both are quadratic. Both are quadratic, that is dx by ax square plus b under root cx square plus d. You see, both are quadratic. In this case, we have two substitution, that is x equal to 1 by t, very useful, x equal to 1 by t, and the other one under root m by L equal to t, under root m by L equal to t. Okay, ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। इसमें there are used 3 substitutions, but it is a very easy process to proceed, and it has the generalized portions, that is हमने देखा कि किस तरह से इससे पहले वाले फॉर्म में टी हमेशा कैंसिल हो रहा था 2 स्टेप, अंदर में क्वाड्रेटिक बन रहा था। उसी तरह इसमें भी हम लोग मूव करते जाएंगे 1 बाय 1, तो ये दिखते जाएगा कि क्या क्या हो रहा है ये, और ये जनरलाइज प्रोसेस होगा। हर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में उसी तरह का जनरलाइज फैक्टर होगा, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का इरेशनल इंटीग्रल समझ में आया होगा। आप लोग होम टास्क जरूर बनाएं, और अगले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और इसको चौथा फॉर्म, ये फॉर्म 4 है, 4 नंबर फॉर्म 4। इसको फिनिश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। काजी भी नहीं, ठीक है, सारा स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे, और ये इंटीग्रल आगे वाले कल में बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और तुम देखोगे कि सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में इस तरह का इंटीग्रल का यूज़ होता है, और वहाँ पर अगर ये तुम्हें याद है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तो चारों फॉर्म को एक बार हल्का सा रिवीजन करा दें। दोनों क्वाड्रेटिक, ये ऐसे करें, फॉर्म तो L रूट m है, अगर m लीनियर हो, चाहे L लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, उस केस में रूट m इक्वल टू t। अगर L जो है लीनियर हो और m क्वाड्रेटिक हो, तो L इक्वल टू 1 बाई टी, और बोथ क्वाड्रेटिक हो तो सीधा सा केस है x इक्वल टू 1 बाई टी। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय।